कैसे हो फ्रेंड्स। होपफुली सब मज़े में होंगे, सबके फैमिली मेम्बर्स भी जिसे कह सकते हैं कि बहुत हेल्दी और हैप्पीनेस कंडीशन में होंगे। तो फ्रेंड्स, फैमिली में हैप्पीनेस बढ़ाने का एक ही ज़रिया ये साल बेहतरीन हार्डवर्क और बेस्ट रिजल्ट, दैट मीन्स सभी फैमिली मेम्बर्स के चेहरे पे खुशियाँ ही खुशियाँ। तो खुशियाँ बांटने का बेहतरीन मौका, आगे बढ़ाते हैं। सो लास्ट टाइम वी डिस्कस मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म. In first lecture I wrote here magnetic effect of electric current. These are the, we can say, the same. In a certain we can say that book it is indicated by this name or given by this name, magnetic effect of electric current. But today I written the basic name, moving charge and magnetism part 2, chapter number 4 part 2. So just remember last lecture. In last lecture, that means in part 1, we discussed magnetic force. Magnetic force acting on any charged particle passing through magnetic field with velocity v. So it is given by equation Fm is equal to q v cross b. V is the velocity of particle and b is the applied magnetic field. So this is the force, or I can say magnetic force is experienced by this charged particle. But don't forget, magnetic force is effective in only one condition, if particle is moving charged particle, or I can say moving condition. You know that very well. Particle in rest, then magnetic force acting on charged particle is zero. After that, friends, we also discussed Lorentz force. Lorentz force simply the combination of two forces. If any charged particle already under the effect of two fields, electric field as well as magnetic field, in short two fields are applied, then what is the resultant force acting on this type of charged particle? It can be found by using Lorentz force, or I can say Lorentz force. Lorentz force is the combination of electrical force and magnetic force. So we have idea about the formula for electrical force, Fe is equal to QE, and magnetic force already we have discussed. So this is the formula most time पे ये दोनों फॉर्मूले और इसके रिलेटेड हमने कल A to Z यानी पार्ट 1 में A to Z डिस्कस किया। आज का लेक्चर शुरू करें उससे पहले होमवर्क का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। If you remember part 1, and those students who have not observed, then please observe part 1. So you can see what is the most time question. There is a charged particle, that means electron. याद करो कल का डेटा, electron is moving already in the direction of x axis with velocity v. ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, देखो। अब हमें इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको डिफ्लेक्ट करवाना, ये डायरेक्शन में। दैट मींस इफ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, then we have to apply force in upper direction. If force is applied in upper direction, then particle you can see that is deflected in anti-clockwise direction. And the same question for clockwise, then we have to apply force in downward direction. तो आपको फोर्स ऊपर लगाना है, तो इधर वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है, एक पॉइंट क्लियर है, मैग्नेटिक फोर्स अपने को ऊपर यानी इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई करना चाहिए, तो ये फोर्स ऊपर लगे। तो अपन लोग तो जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू वी क्रॉस बी। ये न्यूमेरिकल जो चिकना है, बिकॉज ऑफ दिस साइन यू कैन सी, दैट्स व्हाई मेकिंग एरो हियर। Here we are discussing for electron. Electron negatively charged particle, and because of this minus sign, the game you can see that is changed. First of all, if you don't consider this minus sign, then obviously this magnetic force is always perpendicular to the plane formed by these two quantities. You know that this is velocity, suppose this is magnetic field, and this is you can see that force. कोई बोले वो आपने रट्टे मारे इसलिए सब ड्रॉ कर दिया, तो डोंट वरी, ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब अपने लोगों को जिसे कह सकते हैं कि ये ना पता चले तो इधर एक्स एक्सिस कर दो, ये वाई एक्सिस है, एक्स के लिए आई कैप कर दो, वाई के लिए जे कैप कर दो, और हम लोग तो ये इक्वेशन में इधर देखो एफ की जगह कर देते हैं जे कैप, वेलोसिटी की जगह कर देते हैं आई कैप, क्रॉस बी की जगह क्या रखे ताकि आंसर जे कैप आए। तो अपन लोग को तो कल मैंने ये पॉइंट दिया ही, आई जे के, ये बबुड़िया याद रखने का है छोटा सा, यू नो दैट, ये हमने डिस्कस किया था कल। तो
अगर हमें जे आंसर चाहिए, सो यू कैन सी जे इज इक्वल टू आई जे के, आई क्रॉस जे के क्रॉस आई जे, k cross I j, you can see k cross I, here I cross k, so obviously upward direction में force चाहिए, तो by putting minus sign I can just interchange the position. देखो question mark इधर ले लिया, I इधर ले लिया, but minus sign रखा. अब j, so in which circumstances we can obtain j caret? If there is I cross j then k caret, j cross k then I caret, or I cap, or k cross I then j cap. So here we have to set up k क्रॉस आई, तो आंसर तो जे कैप के बदले क्या आ गया, माइनस जे आ गया. देखो तो ये लोचे हो गए माइनस जे, यू कैन सी माइनस जे, दैट मींस ये सिचुएशन के लिए फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, डाउनवर्ड. रेडी, यानी कि फोर्स नीचे लग रहा है तो अपने को फोर्स तो ऊपर ले जाना है, तो हमें ये बी का डायरेक्शन है वो इनवर्ड के बदले आउटवर्ड कर दे तो केस फाइल हो जाए. तो देखो मैंने इनवर्ड की जगह आउटवर्ड कर दी इधर, ये माइनस साइन के कारण. अब देखो इधर एक माइनस साइन अगर आ जाए तो आंसर माइनस माइनस प्लस हो जाए, तो आंसर जिसे प्लस हो जाए तो वापस सिचुएशन तो यही रहेगी कि फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, प्लस जे. अब प्लस जे यानी फोर्स जाएगा जिसे कह सकते हैं ऊपर, मगर उसके लिए हमें ये पोजीशन चेंज करनी पड़े, माइनस साइन लाना पड़े. तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको प्रॉब्लमेटिक पॉइंट आए कि डायरेक्शन कौन सी लेनी है, तो ये एक मेथोडोलॉजी ना समझ में आए तो एक और है अपने पास, राइट हैंड स्क्रू रूल मेथड है, बहुत इजी. सबसे पहले वी और बी के रिलेटेड इधर जिसे कह सकते वी और बी, पहले बी हमने ले लिया नेगेटिव जेड एक्सिस, बिंदास. क्यों नेगेटिव एक्स पता चला नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसको परपेंडिकुलर होगा. अब बी टू बी स्क्रू घुमाता हूं, देखो वी टू बी, इफ स्क्रू इज रोटेटिंग फ्रॉम वी टू बी, वी टू बी, वी टू बी ऐसे, देन चेक द डायरेक्शन ऑफ स्क्रू, इट मूव्स इन अपर डायरेक्शन, स्क्रू मूव्स इन अपर डायरेक्शन, दैट मींस फोर्स एक्टिंग इन अपर डायरेक्शन, फोर्स एक्टिंग इन अपर डायरेक्शन, दैट मींस योर कंडीशन इज सेटिस्फाइड कि एंटी क्लॉकवाइज में डिफ्लेक्ट हो गया. मगर ये नेगेटिव साइन के कारण फोर्स की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है और फोर्स लग जाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसके साथ से वो मैच हो रहा है. अपने को तो फोर्स ऊपर लगाना है, मतलब फोर्स ऊपर लगाना हो तो ये जो डायरेक्शन है वो अब मैं आउटवर्ड कर दूं. अब आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए फोर्स देखो चेक करना बराबर. अब देयर इज, यू कैन सी दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइक हियर वी और बी, एंड कीप अ स्क्रू जस्ट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वी एंड बी. इधर V क्रॉस B है, सो रोटेट द स्क्रू फ्रॉम V टू B, मगर इस साइड तो ऐसे रोटेट करवाना है, ऐसे U, एंड इफ दिस रोटेशन इज परफॉर्म देन स्क्रू मूव्स इन डाउन डायरेक्शन, तो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो ये तो लोचे हो गए, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगे तो पार्टिकल नीचे डिफ्लेक्ट होगा, मगर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. वी आर डिस्कसिंग फॉर इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स गेट रिवर्स. देखो ये एक्चुअली इसके लिए हमने डिस्कस किया V क्रॉस B, बट माइनस, that means what happened, this B cross V, it is, you can see that now B cross V, तो B cross V के लिए आंसर चेक करना तो वो जिसे कह सकते हैं कि ऑटोमेटिकली अपवर्ड ही आ जाएगा. तो B ऑलरेडी अलोंग, you can see that Z एक्सिस, V ऑलरेडी हाई, चेक करो. अब देखो B क्रॉस V, ये माइनस से हटा दो तो आंसर आ जाएगा B क्रॉस V. तो B के लिए होगा J के, क्योंकि B हमने लिया अलोंग Z positive Z axis, sorry K cross K, and V already in the direction of X axis, K cross I Z, J भी positive, देखो positive J मतलब positive axis, तो force ऊपर लग गया. So what is the direction of applied magnetic field? We have to apply magnetic field in the direction of positive Z axis. This is your answer. तो दोस्तों एक गेम है वो डायरेक्शन की है, इसके लिए आप लोग लेफ्ट हैंड रूल भी अप्लाई कर सकते हो. देखो अब मैं ये फंडा बता रहा हूँ, आज से अपन लोग ये याद रखना, दिस इज लेफ्ट हैंड रूल. यू कैन सी फोर्स, थंब ऑलवेज रिप्रेजेंट फोर्स, डोंट फॉरगेट थंब फोर्स. दिस फोर फिंगर यू कैन सी दैट इट रिप्रेजेंट्स, यू कैन सी दैट बी. आपको याद रखना है FBI, अमेरिकन सिस्टम FBI, आई मतलब करंट, जो अगले केस में काम में आने वाला है. और इधर अपन लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो FBV, F फोर्स, फोर फिंगर B एंड मिडिल फिंगर सिंपली रिप्रेजेंट V. तो देखो ये अगर जिसे कह सकते ये फंडा समझ में आ जाना चाहिए. अब इधर अप्लाई करते, देखो ये रहा अपना पॉइंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, चेक इट, वेलोसिटी V, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो मैग्नेटिक फोर्स कौन सी डायरेक्शन में, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए, अंदरूनी पार्ट यानी अंदर, यानी ये होगा मैग्नेटिक फोर्स, ये होगा वेलोसिटी और ये होगा फोर्स. जस्ट चेक इट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, फोर्स, चेक करो. फोर्स ऊपर,
मिडल फिंगर करंट, फोर्स ऊपर, मिडल फिंगर करंट और फोर फिंगर इंडिकेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई बोले सर आपके मुताबिक तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, बट बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन व्हाट हैपन, मैग्नेटिक फील्ड यू कैन सी दैट लाइक इन दिस वे। ये आगे देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड बाहर, ये करंट यानी कि वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये थंब नीचे यानी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। रेडी? तो अब अपन लोग ये कंडीशन अप्लाई करें। देखो जोरदार पॉइंट, अच्छी तरह देखना, इसमें लोगों को लोचे होते हैं। ये रहा आपका वेलोसिटी, जा रहा है वेलोसिटी, ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड, तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड और ये रहा फोर्स। कोई बोले सर इसके मुताबिक तो फोर्स नीचे आ रहा है, डोंट वरी, सही मायने में तो फोर्स नीचे लग रहा है, बट इलेक्ट्रॉन के कारण डायरेक्शन में फोर्स की चेंज हो जाएगी और फोर्स आ जाएगा ऊपर। तो ऊपर फोर्स लगाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो आप ये मेथड थ्रू जा सकते हो, ये स्क्रू वाली मेथड थ्रू जा सकते हो और ये FBV FBI इसके थ्रू भी जा सकते हो। ये भी बहुत ही काम में आने वाला ऐसा है, याद रखना, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। काफी लोग यूं करते हैं, ऐसे करना है। ओके, सो दिस इज मोस्ट टाइम पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। आज का टॉपिक है वो जिसे कह सकते हैं, इस टॉपिक का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट और इसका जिसे कह सकते हैं JEE नीट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और डेफिनेटली बोर्ड के लिए देखा जाए तो बोर्ड में ये 2 मार्क्स का एक थियरी भी देगा। फर्स्ट मोस्ट टाइम की थियरी ऑफ दिस चैप्टर वी आर डिस्कसिंग, सो बी अलर्ट अबाउट इट, वेरी IMP। ओके, सो फ्रेंड्स बी रेडी for today's topic you can see that very IMP, it is magnetic force acting on current carrying conductor. Obtain the formula of magnetic force acting on current carrying conductor. पहला magnetic force देखा, magnetic force acting on charged particle moving with velocity v and through magnetic field B। कल का, आज का हीरो ये मैग्नेटिक फोर्स अगेन, बट दिस मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये वायर के ऊपर कैसे लगेगा? फॉर एग्जांपल सपोज देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, यू कैन सी, अपन लोग डायग्राम अच्छी तरह ड्रॉ करते हैं ताकि इधर भी यूज हो। दिस आर द, यू कैन सी दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दिस क्रॉस यू नो दैट वेरी वेल, सिंपली रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोइंग इनसाइड, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे देखो यूं ऐसे जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इनसाइड दिस मैग्नेटिक फील्ड देयर इज अ कंडक्टर इज प्लेस्ड, दिस इज यू कैन सी दैट कंडक्टिंग वायर, ये रहा वायर आपका। ओके, और अब इसमें से अपन लोग पास करवाएंगे करंट, दिस इज यू कैन सी दैट करंट कैरिंग कंडक्टर, लेट द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर इज L and area of cross section A and it carries some current, you can see current carrying conductor, so let I amount of current is passing through this wire or conductor. So now it is not an ordinary conductor but now it is called a current carrying conductor। तो इसमें से जा रहा है करंट I, ऐसा जो कंडक्टर है जिसका लेंथ है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, उसको रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बोर्ड की अंदर की तरफ जाती हुई डायरेक्शन में। ये मैग्नेटिक फील्ड है और एक करंट। तो देखो ये अपना फंडा बनने जा रहा है, 4 फिंगर FBI, चेक इट, FBI, F B और I, B अंदर जा रहा है, करंट इस साइड जा रहा है और ये फोर्स ऊपर लगेगा। ये फाइनल फॉर्मूला है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया और ये करंट आ गया। ओके, व्हाई दिस एंटायर करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स? Because of yesterday's lecture or last lecture, we have only idea that force is acting or magnetic force is acting only and only on charged particle। अगर कोई charged particle v जितनी वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में से पास होगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, वो हम जानते हैं और उसका फॉर्मूला भी जानते हैं। मगर वही पॉइंट इधर एक कदम आगे चल रहा है। तो दोस्तों ये देखो, ये जिसे कह सकते हैं कि टनल जैसा समझ लो, टनल, और ये टनल में से जो भी बंदा पास हो उसको 10 रुपीज देने के हैं। यहाँ से एंट्री ले, यहाँ बाहर निकले 10 रुपीज देने के। तो इसमें से बहुत सारे बंदे पास होते हो तो टोटल कितना जिसे कह सकते पैसा इकट्ठा हुआ, तो क्या करेंगे, ये जितना जिसे कह सकते बंदे उसे सभी का मनी का एडिशन कर दे। तो बस यही कहानी इधर है। इसमें से भी करंट पास हो रहा है, करंट मतलब मोशन ऑफ चार्ज कैरियर।
तो जैसे ही कोई चार्ज कैरियर इसमें से पास होगा तो अपन लोग जानते हैं इसके ऊपर तो फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये मैग्नेटिक फील्ड में पास हो रहा है। अगर इस वायर में से कोई चार्ज कैरियर v जितनी वेलोसिटी के साथ पास हो रहा हो तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला लगाएगा F is equal to Q into V cross B. We have already idea about the magnetic force acting on a charged particle. It is Q V cross B. याद करो कल का इक्वेशन मोस्ट टाइम भी। तो अगर कोई Q जितना चार्ज है या चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज Q है वो ये वायर में से V जितनी वेलोसिटी के साथ पास होगा तो इसके ऊपर इतना फोर्स लगेगा। मगर थोड़ी देर के लिए सोचो कि करंट पास हो रहा मतलब एक चार्ज पार्टिकल नहीं होगा, देयर आर इन्यूमरेबल चार्ज्ड पार्टिकल्स पासिंग थ्रू दिस वायर। तो इसमें से तो बहुत सारे चार्ज्ड पार्टिकल्स पास होते होंगे। हर एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड इतना फोर्स लगा है तो टोटल तो जितने चार्ज पार्टिकल्स है उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसका समेशन कर दो तो आंसर आ गया। तो बहुत इजी, इतना ही थीम याद रखना है, एक चार्ज के ऊपर इतना फोर्स, तो बस ये जो वायर है उसमें से जितने भी चार्ज पार्टिकल्स पास हो रहे हैं उसकी नंबर या उसका काउंटिंग कर दो नंबर का तो केस फाइल हो गया। सपोज इसमें से 500 चार्ज पार्टिकल्स पास हो रहे हो तो ये फोर्स को मल्टीप्लाई बाय 500 कर दो यानी आंसर आ गया। तो अपने को तो पता नहीं 500, सो विल कंसीडर लेट कैपिटल N नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इज पासिंग थ्रू दिस वायर और कंडक्टर विथ वी कैन से दैट वेलोसिटी v। तो अपन लोग सबसे पहले शुरू करते हैं, let the number density of charged particles is small n। नंबर डेंसिटी को आप भली भांति जानते हो, नंबर डेंसिटी दैट मीन्स लिखते मीन्स नंबर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम is simply you can see that n। number density of charged particles का मतलब होता है number of charged particles per unit volume is small n। ready? most important, just a minute। okay, so थोड़ा इधर अपन लोग means okay। Now we have idea about the number of charged particles per unit volume is small n। अपने को पता है टोटल कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है n, तो मगर ये जो वॉल्यूम है वो बन जाए तो मतलब जिसे कह सकते इसके अंदर के चार्ज पार्टिकल्स भी मिल जाए। ये फिक्स है ऑलवेज, कोई भी सिलिंड्रिकल वायर दे उसके अंदर कितने चार्ज्ड पार्टिकल्स हो वो फाइंड करना हो तो सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट फेंकने का, नंबर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल n, सो देयरफॉर द नंबर ऑफ charged particles per what is the volume of this entire cylindrical conductor। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अपन लोग जानते हैं एरिया इनटू लेंथ। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर ए इनटू एल, एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम। तो इट इज वी हैव कंसीडर्ड कैपिटल एन, हमने वो एन लिया है, सो कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन मल्टीप्लाई बाय ए इनटू एल। So these are the number of charged particles already we can say that accumulated in this entire cylindrical region। तो इतने रीजन में इतने नंबर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स होंगे और ये सभी चार्ज्ड पार्टिकल्स वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं। याद करो चैप्टर 3, whenever current passing through any conducting wire then electrons or charged particles or mobile charge carriers passing through wire with certain velocity and particular name is given to this velocity, drift velocity। तो ये सभी चार्ज्ड पार्टिकल्स से वायर में से करंट पास हो रहा है मतलब ये सभी चार्ज्ड पार्टिकल्स, कितने चार्ज्ड पार्टिकल्स ये वायर में से ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितनी वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मगर ये किस में से आगे बढ़ रहे हैं? ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड। तो पता चला ये वायर को फोर्स क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये सभी चार्ज पार्टिकल्स जैसे ही वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में से पास होंगे, मैग्नेटिक फील्ड तो राह देख के बैठा है, जैसे ही चार्ज पार्टिकल सर्टेन वेलोसिटी के साथ मोशन करेंगे मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये जितने चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लग रहा है अल्टीमेटली ये फोर्स मिलेगा ये पूरे वायर को। That's why magnetic force acting on current carrying conductor। Why this current carrying conductor experience of magnetic force? Now you understand
Here magnetic force acting on current carrying conductor due to force experienced by charged particles passing through this conductor. तो अपने को फोर्स फाइंड करना हो तो हम लोग एक कदम आगे बढ़े. ओके, अब हमें पता चल गया इतने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है. सो व्हाट इज द वी कैन से दैट now magnetic force is acting on a charged particle. एक का चार्ज का दिखते हैं. Magnetic force is acting on a charged particle moving with velocity v. It is given by equation Fm is equal to Q into V cross B. You can see this is the formula of magnetic force acting on a charged particle passing through magnetic field with velocity v. ओके, तो ये फॉर्मूला मिल गया. मगर ये तो एक चार्ज पार्टिकल का फोर्स है, अपने पास तो नंबर मिल गए. सो देयरफॉर द टोटल मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन कैपिटल N इज इक्वल टू NaL. अपने पास नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है. कैपिटल N इज इक्वल टू NaL, नंबर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स passing through given conductor with drift velocity Vd is given as F is equal to एक के ऊपर इतना तो n के ऊपर कितना, सिंपली यूनिटरी मेथड. सो n into Fm. check it. So therefore I can write total magnetic force F is equal to N already with us NaL, already we found N, Fm already with us, Q into now Vd cross B. You can see instead of V now Vd because we know that drift velocity. तो यहाँ तक किसी को डाउट, वापस डाउट क्लियर कर देते. बहुत इजी थियरी. सबसे पहले ये वायर में से कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पास हो रहे हैं वो फाइंड कर लो. उसके लिए हमने अप्लाई किया यूनिट वॉल्यूम पे n, तो एयर वॉल्यूम पे कितना, तो इतने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स मिल गए. अब एक चार्ज पार्टिकल जब v जितनी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में से पास होता है तो इतना फोर्स लग रहा है. तो अगर इतने सारे चार्ज पार्टिकल पास होंगे तो कितना फोर्स लगेगा, इतना. अब इसमें थोड़ा जिसे कह सकते करते हैं छेड़खानी. तो जरा देखते जाओ. ये जो मैं स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ उससे काफी लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है. प्रॉब्लम यानी कि समझ में नहीं आता. कोई बोले ये सर आपने समझ में इसलिए नहीं है क्योंकि आपने NaLQ को Vd के साथ मल्टीप्लाई किया, मगर ये B तो रह गया, ये B रह जाएगा. और अगर आपने भी बराबर कंसेप्ट अप्लाई नहीं किया तो आप भी रह जाओगे क्योंकि इधर प्लस नहीं है क्रॉस है. तो ये सिंपल मल्टीप्लाई फॉर्म है, यानी ये पोर्शन को हमने Vd के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. इधर तो मल्टीप्लिकेशन साइन इधर प्लस होता तो NaLQ को Vd के साथ और B के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ता. और दूसरी बात, रिमेंबर पार्ट 1, you know that whenever you are dealing with vector product then don't try to change this equation. पहले Vd बाद में B. You can see that ये most time पे. तो अब अपन लोग एक कदम इसमें और आगे बढ़ते हैं. So total force F is equal to, अब मैं क्या करता हूँ NaVd और Q को एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ. देखो NaVdQ, और ये Vd है उसकी जो ये टोपी है यानी वेक्टर साइन वो दे देता हूँ L को. कोई बोले ये बराबर नहीं पता चला क्योंकि ये तो किसी की टोपी, यस किसी की आदत है, इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी इसके सर, Vd की टोपी L के ऊपर. क्यों? क्योंकि Vd है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. Vd सिंपली रिप्रेजेंट वेलोसिटी. तो इधर आप देखो तो Vd डायरेक्शन है वो अपन लोग करंट की डायरेक्शन में अपन लोग रखे. अभी सपोज इधर डायरेक्शन में कोई चार्ज पार्टिकल में पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ, तो अगर करंट इस साइड फ्लो हो रहा है तो चार्ज पार्टिकल भी सपोज Vd जितनी वेलोसिटी के साथ इस साइड जा रहा है. तो अपन लोग ने देखा इट मूव्स अलोंग द लेंथ, दैट मींस Vd जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता था वो जिम्मा दे दिया अब लेंथ को, यानी कि ये Vd रिप्रेजेंट करे डायरेक्शन, अब उसके बदले डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ. कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोनों का मतलब एक निकलता है. मैं बता रहा हूं कि इधर
या आप कोई रास्ते पे मैं खड़ा हूँ और मैं इधर खड़ा हुआ रह के हुए लोगों को एक डायरेक्शन बताता हूँ कि इस साइड जाओगे तो ये सिटी आएगा, इस साइड जाओगे तो ये सिटी, अब मेरे बदले कोई दूसरा खड़ा रह के वही बताए कि इस साइड जाओगे तो नो प्रॉब्लम, डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग वेक्टर, बट नाउ इंस्टेड ऑफ VD, L representing direction, don't worry. So this is, you can see that point NaVdQL. Okay, but NaVdQL, just check it, but NaVdQ it is, याद करो V ना, charge into VD into A into N, it is simply current I because of chapter number 3 current electricity. So F is equal to IL cross simply B. You can see this is the Dhum formula we have derived. Instead of NaVdQ now we can consider IL, you can see. So IL cross B, this is the formula of force which is acting. देखो कल का फॉर्मूला ये है, कल क्या था, फोर्स एक्टिंग, चेक करो, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज्ड पार्टिकल पासिंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड विथ वेलोसिटी v, तो ये चारों आ गए ना, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। याद रखने का बहुत इजी, व्हाट इज, पहले पूरा सुन लो आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L placed in magnetic field B, you can see. So this is the most time big formula. If you remove this, we can say that cross, that means write in the form of magnitude, then you know that this is the formula in terms of magnitude, where theta is the angle between magnetic field and this IL segment or direction of current. You can see most IMP, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है उसके बीच का एंगल याद करो, देखो FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, F यानी फोर्स, थंब, फोर फिंगर रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करंट, FBI, F देखो FBI मोस्ट IMP, ऐसा करके यूं कर देने का है, FBI, अगर वही फॉर्मूला FBV के लिए FBV, यू कैन सी वेरी IMP, इससे डायरेक्शन पता चलेगा, तो ये डायरेक्शन पता चल ही रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर व्हाइल फोर्स परपेंडिकुलर टू दिस बोथ क्वांटिटीज, सो दिस इज द सुप्रीम फॉर्मूला वी हैव डिराइव्ड। अगर आपको इसमें एक और छेड़खानी करके लिखना हो तो मैं लिख के बताता हूँ, आंसर यही जाएगा, वो मैं इधर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो अगर ये NaVdQ की जगह काफी जगह पे ऐसा किया जाता है, NVDQ, देखो मैं सिर्फ NVDQ लेता हूँ, A और L बार रखता हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल, और A साइन अब L को नहीं देता हूँ, VD को रखता हूँ, चलो तो ये भी चले, ये भी दूसरा मेथड। सो NVDQ को याद करो, वो था करंट डेंसिटी J, जिसका चैप्टर नंबर 3 स्ट्रॉन्ग होगा उसको पता चलेगा। कोई बोले करंट डेंसिटी जैसा कुछ पढ़ा था, NVDQ इज इक्वल टू करंट डेंसिटी J और J इंटू A, तो याद करो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I बाई A, सो I इज इक्वल टू JA, तो इंस्टेड ऑफ JA वी कैन सेट अप करंट, सो IL क्रॉस B। देखो मगर इधर लोगों को डायरेक्शन का कंफ्यूजन होता है कि सर करंट की डायरेक्शन वापस लेंथ को दे दी, क्योंकि करंट अपन लोग जानते हैं ज्यादातर अपन लोग स्केलर के तौर पे ले रहे हैं, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये इजी है तो अपन लोग ने देखा। मोस्ट टाइम पे थियरी बोर्ड में आपको यही अंदाज से लिखना है, मगर ये डायग्राम से पहले एक जिसे कह सकते हैं कि स्टेटमेंट लिख देना, क्या, इन गिवन डायग्राम करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L क्रॉस सेक्शन एरिया A is placed in uniform magnetic field B, you can see, and then we'll start। और थियरी का थीम बहुत इजी, सबसे पहले कितने नंबर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स पास हो रहे वो फाइंड करो, फिर एक का फोर्स हम जानते हैं तो इसके ऊपर कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है वो पता चल जाए तो उसका फोर्स मिल जाए। तो अपन लोग ने देखा नंबर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल n, पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स आर पासिंग थ्रू दिस वायर, so for AL volume, area into length volume, then it is NaL। इस कंडक्टर में से इतने चार्ज्ड पार्टिकल्स पास हो रहे हैं, वो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD के साथ, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगे, तो एक के ऊपर इतना, तो कैपिटल N के ऊपर कितना,
फिर तो वैल्यू VD के साथ जिसे कह सकते हैं ब्रैकेट ओपन कर दिया, VD का टोपी दे दिया L को, NaVdQi हो गया IL क्रॉस B। ये फर्स्ट मोस्ट आईएमपी थ्योरी फॉर 2 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। और इसका जो आउटपुट है वो भी माशाल्लाह मोस्ट आईएमपी धूम मचाने वाला है, डोंट फॉरगेट IL क्रॉस B। सो फ्रेंड्स, नाउ टू फॉर्मूला विथ यू particularly for magnetic forces. Number 1, magnetic force acting on charged particle passing through magnetic field with velocity v। अब सब कुछ आ ही गया, F is equal to Q V क्रॉस B। अगर ऐसा फॉर्मूला पूछे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर having length L placed in magnetic field B, it is IL क्रॉस B और IL B sin थीटा। अब थीटा की वैल्यू के ऊपर से पता चल जाए, अगर थीटा 0 हो और 180 डिग्री हो, यानी कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल और एंटी पैरेलल हो तो फोर्स 0 हो जाएगा, ये याद रखना है। मैक्सिमम फोर्स के लिए थीटा क्या होना चाहिए 90, यानी कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, ये रहा देखो, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट परपेंडिकुलर हो तब मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड होता है। वेरी 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 आईएमपी पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड, so don't forget this is the first most IMP theory of this chapter for 2 marks, so you have to write like in this way along with diagram. So now we'll apply some conceptual, we can say the question, or we'll try to solve some very important question based on this portion। तो अब अपन लोग आज का JEE नीट सेशन शुरू करते हैं। सभी बंदों को विनती, इधर ध्यान रखें, एक बार ये देख ले अच्छी तरह। Ready? Now we try to solve some question based on, we can say that this formula. So be alert, very very important। सबसे पहले अपन लोग 2-3 इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं, फिर कुछ JEE नीट सेशन में जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस एज यूजुअल आपको ट्राई करने हैं। Okay, so first of all, F is equal to formula, you know that IL cross B, in terms of magnitude it is IL B sin theta। चलो, these are the, we can say that magnetic field lines, यानी कि this is the direction of magnetic field। Inside this magnetic field there is a wire, this is wire you can see, and carrying a current I जितना करंट पास हो रहा है इसमें से, this wire is placed, what is the length of wire L? It is placed in such a way that it forms 30 degree angle with this magnetic field। ऐसे वायर रखा है, उसमें से करंट पास हो रहा है। So what is the force acting on this wire? Calculate force acting on wire। कोई बोले क्या खाक कैलकुलेट करे, वैल्यू तो दी नहीं, तो अपन लोग वैल्यू भी दे देते हैं। ओके, ये 30 डिग्री है, करंट ऑलरेडी गिवन, लेंथ है 1 मीटर, करंट है 8 एम्पियर और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है 0.15 टेस्ला। तो फॉर्मूला कौन सा आएगा? F इज इक्वल टू ILB sin थीटा। मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर, इट इज ILB sin थीटा। I ऑलरेडी 8, लेंथ 1, मैग्नेटिक फील्ड 0.15 sin 30। sin 30 की वैल्यू ना आए तो लोचे, इफ यू सेट अप द वैल्यूज and simplify, answer 0.6 Newton per meter। force acting पर you can see that unit length बोला है क्योंकि इधर लेंथ की वैल्यू 1 है। so ऐसा क्वेश्चन पूछा है, force acting on wire per unit length, there is a problem, but don't worry, अपन लोग ने ऑलरेडी 1 मीटर लिया था, इसलिए न्यूटन पर मीटर। इस न्यूमेरिकल पूछने का एक रीजन यूनिट, क्योंकि काफी स्टूडेंट फॉर्म में सिर्फ न्यूटन लिख के आएंगे, बट हियर you have to find force acting on wire per unit length, don't forget। so ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हमने सोल्व किया, और ये क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक का 4.5, यानी कि अनसोल्ड नंबर 4.5। टेक्स्ट बुक का अनसोल्ड हमने शुरू किया NCERT, देखो तो ये पहला। अब इसके ऊपर से आपको पता चल गया कि ये फॉर्मूला अप्लाई करने का, तो 4.6 आपको अपने आप ट्राई करना है। तो 4.5 और 4.6 चचेरे भाई है, तो 4.5 आ जाए तो 4.6 ऑब्वियसली होगा। अब अपन लोग जो फॉर्मूला और जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन मुझे प्रेडिक्टेबल लग रहा है IMP, और ऑब्वियसली JEE नीट के लिए तो बहुत ही IMP है। सो सभी बंदों को विनती, इधर जरा ध्यान रखें।
you can see this type of magnetic field lines or magnetic field is already shown in this diagram. ये क्रॉस बता रहा हूँ मतलब समझ जाना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोइंग इनसाइड, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है. देखो what is the intensity of magnetic field B. Now there is a wire, this is, you can see that wire or conductor is placed like in this way. What is the mass of this wire or conductor? It is m. Obviously I would like to suspend this wire, we can say that at the same position without any falling. That means I would like to, we can say that suspend this wire. मगर ये सस्पेंशन कंडीशन में नहीं रह सकता बिकॉज ऑफ मास. यू नो दैट वेरी वेल, बिकॉज ऑफ मास वन फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट एंड इट्स फॉर्मूला यू नो दैट वेरी वेल, इट इज सिंपली mg. So under the effect of this force due to weight, what happen? Wire simply goes in down direction, but we would like to keep this wire at the same position. So obviously what we have to do, अगर ये वायर को यहाँ का यहाँ रखना हो, मगर रहेगा नहीं क्योंकि mg फोर्स है, तो ऑब्वियसली हमें इस mg फोर्स को नलिफाई करना पड़े. तो ये आप जानते हो कौन सी डायरेक्शन में मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़े, तो मुझे दूसरा फोर्स ए डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़े. तो ये जो फोर्स है वो mg को नलिफाई कर दे तो अपना वायर है वो सस्पेंडेड कंडीशन में रहेगा. मगर ये फोर्स आएगा क्यों, तो अपन लोग इसमें से फ्लो करवा रहे हैं करंट. अब चेक करो, दिस इज करंट कैरिंग वायर, लेट द लेंथ ऑफ दिस वायर इज L. So this current carrying wire of length L already inside the magnetic field B, inside the magnetic field B. So obviously this wire experience some force. तो यही क्वेश्चन पूछा है, what should be the, we can say that magnitude of B here set up such that आपको magnetic field की वैल्यू फाइंड करनी है. यानी इन शॉर्ट आई कैन से कितना मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के ऊपर अप्लाई किया जाए जो कुछ करंट लेके जा रहा है, ताकि ये वायर वहां का वहां ही बना रहे. तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से ऐसा तो क्या होगा कि ये वायर यहाँ का यहाँ ही रहेगा. अब जानते हैं हम लोग करंट कैरिंग वायर है, ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये फोर्स लगेगा, और ये फोर्स के अपन लोग को लगाने से इसको mg को वो बैलेंस कर दे तो वायर वहां का वहां रहेगा. अगर क्वेश्चन यही है कि मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. मैं पहले थोड़ा कंसेप्चुअल समझाता हूँ कि देखो मैंने कितनी बार बोला FBI याद रखना है. FBI ये पॉइंट है अपना B, मगर इस केस में देखो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है अंदर, तो ये रहा गया मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो 4 फिंगर. ऐसी सिचुएशन में करंट देखो, करंट ये रहा, करंट देखा जा रहा है, करंट है. और इस सिचुएशन में फोर्स देखो, देखो फोर्स ऊपर है. तो दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स, FBI. तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, current already in this direction and thumb already representing force in upper direction. तो अब पता चल गया कि करंट इस तरह जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी इनसाइड, और तो फोर्स ऊपर ही लगेगा. फोर्स ऊपर लगेगा तो mg is already, you can see the balance. So to keep conductor in equilibrium, obviously magnetic force acting on wire should be equal to mg. Okay, but what is the magnetic force acting on this current carrying wire? It is BIL sin theta or ILB sin theta, जो लिखना हो, is equal to mg. What do you mean by theta? Theta is the angle between I and B. What is the angle between I and B? Obviously 90. So I can write BIL is equal to mg. Reason theta here 90. So your target to find B, so it is mg by IL. ये जो शॉर्टकट बना ये याद रखने का, टू कीप वायर, दिस इज द शॉर्टकट टू कीप कंडक्टर इन इक्विलिब्रियम. ये शॉर्टकट याद रख लो, इसका यूज होने वाला है फ्यूचर में. दिस इज JEE शॉर्टकट. एनी टाइम टू कीप कंडक्टर इन इक्विलिब्रियम यू हैव टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन BIL is equal to mg. मगर कब, कोई वायर करंट कैरिंग वायर हो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तब. जनरल मत समझना डायरेक्ट. तो B की वैल्यू अपने को फाइंड करनी हो, I ऑलरेडी गिवन, डोंट वरी. पहले B मास गिवन, इट इज 0.2, G की वैल्यू नॉट गिवन बट सो 9.8, करंट ऑलरेडी 2 एम्पियर एंड लेंथ ऑफ वायर 1.5. सो इफ यू सिंप्लीफाई आंसर हियर 0.65 Tesla. This is your answer, and this is one of the most timely question we discuss, very important for competitive, and it is all your illustration number
4.1 चैप्टर नंबर 4 का पहला इलास्ट्रेशन हमने कंसीडर किया। मोस्ट आईएमपी इसमें गेम डायरेक्शन का याद रखना, और आज से कोई भी करंट कैरिंग वायर हो उसको मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंडेड कंडीशन या फिर इक्विलिब्रियम में रखना हो तो ऑलवेज एक ज पंच मारना है, BIL=mg। तो ये शॉर्टकट आपकी नोटबुक में आ जाना चाहिए। दिस इज योर इलास्ट्रेशन नंबर 4.1 एनालाइज वेरी आईएमपी। ओके, तो अपन लोग एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब जो क्वेश्चन मैं सोल्व करने जा रहा हूँ वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है और धीरे धीरे अपन लोग लेवल बढ़ा रहे, देखो। और अब जो क्वेश्चन है वो आइडियल फॉर JEE नीट, सो जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड, सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अनसोल्व नंबर 4.5, 4.6 and now you can see that one more. So this type of rigid support, these are the two wires, and there is, you can see that one conducting wire or conductor is suspended by using these two strings. तो ऐसा कंडक्टर आप देख रहे हो, देखो उसको ये दोनों स्ट्रिंग से सस्पेंड किया है। ऑब्वियसली मास ऑफ दिस कंडक्टर इज m, because of mass you know that very well, one force is acting on it and it is mg। अब जैसे ये वायर के ऊपर यानी ये कंडक्टर, दिस इज, यू कैन सी दैट कंडक्टर व्हिच इज सस्पेंडेड बाय यूजिंग दिस टू स्ट्रिंग्स। सो व्हाट अपॉन वो टू मेटालिक वायर्स, डोंट वरी, बट बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ड्यू टू वेट, जैसे ही वायर के ऊपर ये mg फोर्स लगेगा, ये दोनों स्ट्रिंग्स या मेटालिक वायर्स के अंदर एक और फोर्स प्रोड्यूस होता है। आप जानते हो दोनों आ जाएंगे टेंशन में, टेंशन T। रेडी, मोस्ट आईएमपी आपके ऊपर जैसे ही स्ट्रेस आया, यू नो दैट जहां जहां स्ट्रेस वहां वहां स्ट्रेन, या यू नो दैट ये भी हमने दिया स्ट्रेस, तो ये सामने जिसे कह सकते हैं कि टेंशन आया। आपके ऊपर भी स्ट्रेस आता है तो टेंशन। तो अपने को क्वेश्चन क्या पूछा है, हियर फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, व्हाट शुड बी द, वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, चेक करना बराबर, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड such that you can see tension of these two strings or metallic wires become zero। ये दोनों वायर्स में जो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है वो जीरो करना है। तो अगर मैं आपको बोलूं, मैंने आपको होमवर्क में दिया कि भाई ये चैप्टर के या चैप्टर 3 के सभी न्यूमेरिकल्स 20 टाइम्स लिखने हैं और सभी JEE नीट शॉर्टकट 20 टाइम्स लिखने हैं। ये मैंने दिया mg आपको, जैसे ही मैंने आपको mg दिया आपके दिमाग में प्रोड्यूस हुआ टेंशन। मगर मुझे आपका टेंशन जीरो करना हो तो मैंने आपको जो फोर्स या होमवर्क दिया, अगर कोई दूसरा ले ले, तो कोई दूसरा फ्रेंड आके बोले टेंशन मत ले, मैं कर दूंगा, टेंशन मत ले, हाँ, तो वो कर दे होमवर्क, तो क्या हो जाएगा, टेंशन जीरो। सो टू मेक टेंशन जीरो वी हैव टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ mg, और ये वायर के ऊपर ये mg की इफेक्ट नलिफाई कर दे तो ऑब्वियसली ये टेंशन जीरो हो जाए। ओके, और पता ना चले तो इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करके देखो, ऐसा लिख सकता हूँ 2T = mg। तो ऑब्वियसली टेंशन जीरो करना हो तो अपन लोग जानते हैं कि इसमें से जिसे कह सकते हैं कि ऑलरेडी, मैं पॉइंट बता रहा हूँ, करंट ऑलरेडी पासिंग आई, तो ऑब्वियसली एक और फोर्स पहले इंक्लूड कर देते हैं, टी है mg। तो अपने को ये करंट कैरिंग वायर है और अब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना है, क्योंकि विदाउट करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड का कोई मतलब नहीं है। तो मैं पहले वापस थोड़ा एक पॉइंट बता देता हूँ। इस करंट कैरिंग वायर में से I जितना करंट पास हो रहा है, तो ये करंट कैरिंग वायर के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाए ताकि ये टेंशन जीरो हो जाए। तो जैसे ही करंट कैरिंग वायर हो और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो तो ये तो चिल्ला के बाहर आएगा कि ये फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स की डायरेक्शन में कौन सी डायरेक्शन में रखनी चाहिए, इन सच वे, और इन वी कैन से व्हिच वे वी हैव टू अप्लाई दिस फोर्स, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, सच दैट दिस फोर्स कैन नलिफाई द इफेक्ट ऑफ mg। तो obviously to nullify the effect of mg we have to apply force in upward direction। तो magnetic force acting on this current carrying wire should be required in upward direction। तो देखो अब F and mg, अब इक्वेशन लिखो तो 2t प्लस ऊपर तीन फोर्सेस जा रहे हैं T Fm इज इक्वल टू mg। तो टेंशन जीरो कब हो जाए, अगर टेंशन जीरो कर दो तो कंडीशन क्या होगी, Fm इज इक्वल टू mg। सो इन शॉर्ट दिस mg is nullified by Fm, then tension becomes zero। So obviously we'll write to make tension zero
magnetic field is applied so that magnetic force on wire can cancel the effect of, or magnetic force on wire can balance mg फोर्स। देखो ये कंडीशन होनी चाहिए। तो अब अपने को मैग्नेटिक फील्ड किस तरह अप्लाई करेंगे, चलो करंट इस तरह जा रहा है, देख लो करंट इस तरह जा रहा है, तो मैंने बोला आपके पास तो एक गन है यूं करने का, और देखो ऐसे करंट इस साइड जा रहा है, चेक करो ये रहा करंट, देखो हर एक बंदा अच्छी तरह देखेगा करंट इस साइड जा रहा है, करंट इस साइड। मैग्नेटिक फोर्स हमें कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई करना है, ऑब्वियसली अपवर्ड, तो मैग्नेटिक फोर्स भी अपवर्ड है, करंट भी हमारे साथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में देना चाहिए, इनवर्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह अप्लाई करना चाहिए ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोइंग इनसाइड यू कैन सी दैट। तो टू मेक टेंशन 0 B is applied so that magnetic force on wire can balance mg force means magnetic field is applied, so field lines going inside plane of paper। देखो मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस साइड जा रही है। ये ना लिखना हो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, टू मेक टेंशन 0 मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इन सच अ वे, ये स्टेटमेंट भी चले, मगर मैंने इसलिए एडिशनल दिया था कि आपको नॉलेज पता चले। तो अपने में भी इस तरह अप्लाई किया है ताकि मैग्नेटिक फोर्स है वो mg को नलीफाई करे, mg को नलीफाई करे मतलब ऊपर। तो अब अपन लोग शुरू करें, you can see that to make tension 0, so here magnetic force Fm is equal to mg, you can see, but magnetic force is equal to BIL sin theta is equal to mg, but theta is the angle between I and B, already 90, so BIL is equal to mg, धीरे से लिख देने का theta 90, so B is equal to again mg by IL, ये शॉर्टकट तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, अब इसमें रखते हैं वैल्यू, so B m already given it is 60, G 9.8 already 60 ग्राम है, so multiply by 10 raised to 3 कर देते kg, और current passing through wire 5 and length already given 0.45, so if you simplify this portion then answer here 0.26 टेस्ला। इतना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़े, ओके, और वो भी कौन सी डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू करंट एंड गोइंग इनसाइड द प्लेन। लास्ट में आप ये स्टेटमेंट इधर ना लिखो, वो लास्ट में लिख दो तो भी चले। सो 0.26 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड is applied perpendicular to current and going inside plane of paper, most time भी। तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट ये सब स्टेटमेंट्स चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि ये आपका अनसोल्ड चल रहा है 4 पॉइंट, दिस इज योर 4.20, आई कैन से दैट 1 और 21 है, तो 21 के लिए भी इसका इंपोर्टेंस इतना ही जोरदार। मगर ये क्वेश्चन के 3 मार्क्स डायरेक्ट नहीं आएंगे, अभी ये हाफ लेवल पे आया। अब क्वेश्चन दूसरा यही, पहले तो पता चल गया करंट हमने पास करवाया था आई करंट कैरिंग वायर है, मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे ताकि इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगे। मैग्नेटिक फोर्स हमने क्यों ऊपर लगाया, हमने मैग्नेटिक फील्ड इस तरह अप्लाई किया ताकि मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगे, और मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगने से mg नलीफाई हो जाए, अगर mg नलीफाई हो जाए तो टेंशन 0 हो जाए, वो भी मैंने बताया आपको क्यों। अब आपको यही क्वेश्चन पूछा है कि अगर यही कहानी इतना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद अगर करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी जाए, यानी रिवर्स, ये जाता था इसके बदले इस तरह, तो कितना टोटल टेंशन जनरेट होगा वायर में। सो नाउ विल थिंक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। ये क्वेश्चन आईएमपी अनसोल्ड नंबर 2.21, so be alert, okay। Now you can see that the second case we would like to think after reversing direction of current, after reversing the direction of current, यानी देखो करंट की डायरेक्शन इधर, तो
तो अब अपन लोग वापस गन निकालते हैं. यू कैन सी दैट एफ बी आई, मगर अब करंट इस साइड जा रहा है, देखो जस्ट चेक इट. यू कैन सी, मगर इस तरफ पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाएगा ऐसे, देखो नाउ यू कैन सी दैट करंट ऑलरेडी इन दिस डायरेक्शन, देन मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलरेडी इनसाइड है, देन व्हाट हैपन विद द फोर्स एक्टिंग इन डाउन डायरेक्शन. सिंपल करंट की डायरेक्शन रिवर्स करो मतलब फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाए. देखो करंट की डायरेक्शन पहले जिसे कह सकते हैं कि अपन लोग ने ऐसे रखा था, पहले ऐसे थी, अब अपन लोग इस तरफ ले आए तो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया. सो आफ्टर रिवर्सिंग डायरेक्शन ऑफ करंट, magnetic force is acting, magnetic force on conductor is acting in downward direction. As per Fleming left hand rule भी लिख सकते हो. So downward direction, so that means now we have to remove this force, and force is acting in down direction Fm. So in this situation what happened, the total tension देखो ऊपर दो ही फोर्स ऊपर है टेंशन, so 2T is balanced by two forces mg plus Fm. so total tension 2T का मतलब है total tension in wires is equal to mg plus what is the formula of Fm, Fm is equal to BIL sin theta. so total tension mg अपन लोग तो जानते हैं, थीटा तो ऑलरेडी 90 है, so BIL. अब इसमें वैल्यूज रखने देंगे तो m अपन लोग जानते हैं m है 60 इंटू 10⁻⁻³ g 9.8 प्लस b है 0.26. अगर ये आंसर रॉन्ग आया मतलब ये भी रॉन्ग. करंट है सिंपली 5 एम्पियर, लेंथ 0.45. सो टोटल टेंशन ऑलरेडी हियर इट इज 1.175 न्यूटन. आंसर मोस्ट टाइम पे देखो एक ज पॉइंट करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो तो मैग्नेटिक फोर्स चेंज हो जाए. ये फंडा याद रखने का. देखो ये पहले करंट ऐसा था, फोर्स ऊपर, अब करंट आ गया ऐसे, फोर्स नीचे. तो फोर्स नीचे तो फोर्स Fm और mg, मैग्नेटिक फोर्स एंड mg बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. दिस टू फोर्स इज बैलेंस्ड बाय टू टेंशन यानी टोटल टेंशन इन वायर्स. सो दिस इज द बेस्ट न्यूमेरिकल 4.21 and it is very important for 2021. ये न्यूमेरिकल खास ध्यान रखने का है. अब अपन लोग जिसे कह सकते हैं कि ऐसे कुछ और क्वेश्चन को ले आते हैं पिक्चर में. तो जरा देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब जो मैं क्वेश्चन ऐसा ही टेंशन रिलेटेड ही है, वो अपन लोग अब आउट ऑफ टेक्स्ट बुक जाते हैं. इसमें एक ही क्वेश्चन मैंने बाकी रखा है जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मगर वो अपन लोग बाद में सोल्व करेंगे. पहले इतने क्वेश्चन के बाद अब थोड़ा आउट ऑफ टेक्स्ट बुक यानी JEE नीट में जाते हैं. तो सबसे पहले मैं एक जिसे कह सकते क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको ट्राई करने की है. तो क्वेश्चन में इजी क्वेश्चन हमने जो, और आइडियल क्वेश्चन तो ऑलरेडी टेंशन रिलेटेड वो सब कर दी है, मगर अब जो क्वेश्चन है वो थोड़ा हटके इसलिए है क्योंकि मैं इसका डेटा दे रहा हूँ और ये आइडियल फॉर JEE है. तो पहले मैं क्वेश्चन फेंकता हूँ फिर आप ट्राई करना. These are the magnetic field lines you can see. क्रॉसिस का मतलब समझ गए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरफ जा रहा है, अंदर. सो दिस आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. नाउ देयर आर यू कैन सी टू कंडक्टर्स और टू मेटेलिक रॉड्स इस तरह, और इसके ऊपर हमने रखा है वायर. देखते जाना बराबर, ये रहा वायर, दिस इज मेटेलिक वायर. रेडी, एंड this is you can see that metallic wire इतना लेंथ के साथ रखा है. this is wire PQ. the length of wire PQ is already given 5 centimeter. yes, so length 5 centimeter. okay, इसका मास भी दिया है. मास ऑफ दिस वायर इज गिवन 10 ग्राम. और यहाँ पे सर्किट कंप्लीट की है इस तरह की बैटरी से. रियोस्टेट यानी जानते हो ना, वेरिएबल रेजिस्टर से. चलो, और बैटरी है 6 वोल्ट की. ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन में रीड करता हूँ. मेटल वायर PQ ऑफ मास 10 ग्राम lies at you can see that rest on two horizontal metallic rods or rails. You can see that distance 5 centimeter. Now vertically downward magnetic field magnitude of 0.8, magnetic field of 0.80 Tesla or 0.8 Tesla is applied. Okay, now the resistance of the
what is the resistance of the circuit is slowly decreased, and it is found that when the resistance goes below 20 ohm, then current passing through wire, जैसे इधर से रेजिस्टेंस में 20 ओम से कम कर देता हूं तो इतना करंट पास होता है, देन 20 रेजिस्टेंस गोस बिलो 20 ओम, then current passing through wire, so that wire simply slides over 2 arms and ये arm 1 and arm 2 इसके ऊपर स्लाइड करने लगता है. Once again, the resistance goes below 20 ohm, the wire PQ just starts sliding on the rails. Find the coefficient of friction. देखो ये जोरदार, find coefficient of friction. This is your target. Find coefficient of friction. You can see once again, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन मैंने इसलिए सिलेक्ट किया था कि इसके साथ हमारे अपर लेवल के फंडे क्लियर हो जाए. ऐसे दो मेटेलिक रोड के ऊपर ऐसा वायर रखा है, ये वायर का मास दिया है, लेंथ दिया है, कितना मैग्नेटिक फील्ड ये अप्लाई किया वो भी दिया है. इधर सर्किट कंप्लीट है, 6 वोल्ट की बैटरी से करंट फ्लो होगा. देखो शुरुआत में रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इस वायर में से करंट कम फ्लो होगा. करंट कम फ्लो होगा तो ऑब्वियसली करंट कैरिंग वायर है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, मतलब उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा कौन सा ILB sin थीटा, वो इतना इनफ नहीं होगा कि इधर जो रेजिस्टिव फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, रेजिस्टिव फोर्स ऑलरेडी इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन इस साइड हो तो रेजिस्टिव फोर्स है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स इस तरह. देखो फ्रिक्शनल फोर्स, तो अभी फ्रिक्शनल फोर्स का पलड़ा भारी है, रेजिस्टेंस ज्यादा, करंट कम, फोर्स ज्यादा, करंट कम तो फोर्स कम, तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है FM उसका पलड़ा अभी भारी नहीं है. किससे? फ्रिक्शनल फोर्स से, इसलिए वो स्लाइड नहीं हो रहा है. मगर जैसे जैसे यहाँ से रेजिस्टेंस कम करे, रेजिस्टेंस कम होगा, करंट की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़े फोर्स की वैल्यू बढ़े और ये मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू बढ़े तो ये जो वायर है वो मोशन में आ जाए. तो जब ये वायर स्लाइड होना शुरू करे तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है. तो पूरी थीम मैंने आपको दी है, वीडियो पॉज करो और अपने आप ट्राई करो, चेक इट. ओके, तो अब जिसे कह सकते हैं कि आपने ट्राई की होगी तो अपन लोग सोल्व करते हैं. सबसे पहले तो एक बात क्लियर हो गई कि मैग्नेटिक फोर्स है, दिस इज FM. It is, you can see that equal or greater than, you can see that frictional force. This is the condition when wire is sliding, then this condition must be satisfied. तो FM का तो फॉर्मूला हम लोग जानते BIL, ओके, sin थीटा थीटा ऑलवेज परपेंडिकुलर, दैट मींस 90. फ्रिक्शनल फोर्स को आप जानते हो म्यू एस एन, यानी कि BIL इज इक्वल टू म्यू एस mg. याद आया? BIL is equal to mu s mg. So now we have to find about B. So this is your target to find mu s. So it is BIL upon mg. So set up the values. So all values with you. Be your final answer 0.12. This is your answer. You can see most time पे question. इधर भी जरा आप देखो, इधर कंडीशन अच्छी तरह देखना. ये मैग्नेटिक फील्ड है गोइंग, ये मैग्नेटिक फील्ड, यू कैन सी दैट 4 फिंगर. अब जिसे कह सकते हैं फोर्स हमें इससे लेना है, यूं देखो ये फोर्स कर दिया और ये डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, यू कैन सी दैट करंट, तो करंट इस तरफ फ्लो होता होगा. नाउ चेक दिस वन, वी विल थिंक अबाउट द नेक्स्ट वन. Okay friends, so you can see that this is the most timely question already asking, you can see that JW. मैंने इसको इसलिए सिलेक्ट किया है कि ये सब टिपिकल क्वेश्चन है, ये अपर सेगमेंट के क्वेश्चन, इसके ऊपर कभी कभार ही जाने के चांसेस होंगे. एक और कवर करते मस्त, फिर इसके बाद होमवर्क और अगला पूरा सेशन इसमें रहने वाले हैं.
सो जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड। क्वेश्चन में सिंपल एफबीआई वाला फंडा याद रखना अच्छी तरह, डायरेक्शन को पकड़ लो अच्छी तरह, तो कोई टेंशन होगा नहीं। ओके, नाउ वी डिस्कस मोस्ट टाइम द क्वेश्चन ऑलरेडी आस्किंग नीट 2018। तो बी ग्रुप वाले देखो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेटेस्ट वर्जन नीट 2018। मैं डेटा इधर से बोल रहा हूँ। A metallic rod of mass per unit length यानी m/l 0.5 kg per meter is already lying on a horizontal on a smooth inclined plane। देखो स्मूथ inclined plane, और ये आपका है वायर। कोई बोले तो बहुत जैसे दिख रहा है, मगर 3D में मैं ड्रॉ करूं तो ऐसे वायर पड़ा है। देखो ये आप यहाँ से देख रहे हो, इसलिए मैंने इसको ऐसे बताया। रेडी, अब पता चलता जाएगा। देखो अभी what is the incline angle? Here incline angle is 30 degree. This angle is 30 degree. Okay, now and the rod is not allowed to slide down by flowing the current। इसको नीचे नहीं जाने देना है, इसलिए इसमें से करंट फ्लो करेंगे। ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने का है। सो if when a magnetic field of induction 0.5 Tesla, you can see 0.25 Tesla magnetic field is applied, and magnetic field is applied exactly we can say that on it the vertical direction, this is the direction of magnetic field। रेडी, ये वायर ऐसा है, इधर हमने ड्रॉ किया था ये वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड है। देखो अब ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये वायर को नीचे नहीं आने देना है, वहां का वहीं रखना है। ऑब्वियसली इसमें से क्या फ्लो करवाने का होगा, करंट। तो करंट फ्लो होगा तो ये करंट कैरिंग वायर हो जाए, करंट कैरिंग वायर हो जाए तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। कौन लगाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। इन द करंट फ्लोइंग द रोड टू कीप इट स्टेशनरी इज ब्लैंक। तो बस मैंने बोला वही, इसमें से कितना करंट फ्लो करवाए ताकि ये रोड यहाँ का यहाँ ही रहे। तो सबसे पहले ऐसा न्यूमेरिकल है बिंदास, इसके ऊपर जितने फोर्सेस लग रहे पहले वो रिप्रेजेंट कर दो। सबसे पहले तो इसके ऊपर पहला फोर्स लगेगा उसका मास, क्योंकि ये रहा mg। और अपन लोग तो जानते हैं ऐसा डायग्राम हम ड्रॉ कर करके मर गए, बिकॉज ऑफ चैप्टर नंबर, you know that very well, chapter number 5-6 laws of motion। तो mg sin थीटा, तो ये होगा mg sin थीटा। अब ये वायर है उसके ऊपर देखो ये डायरेक्शन में लग रहा है mg sin थीटा, चेक करो। और ये अपना थीटा, ये दोनों डायग्राम 2D 3D पैरेलल चला रहा हूँ। अब इसमें से करंट फ्लो करवाएंगे इस डायरेक्शन में। कोई बोले ये अच्छा आप रट्टे मार के आते इसलिए आपको पता चले। अब रट्टे की बात नहीं, देखो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तीनों फिंगर में कौन सा, ये रहा देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। और फोर्स जिसे कह सकते हैं कि हमें कौन सी डायरेक्शन में देना पड़े। अगर मुझे वायर को यहाँ ही रखना हो तो ऑब्वियसली mg cos थीटा का कोई रोल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि mg cos थीटा को एक बंदा नलीफाई करेगा। कौन सा बंदा? एनीबॉडी, नॉर्मल, नटूलाल, मंजुला बेन, याद करो। तो ये नटूलाल है वो mg cos थीटा को बैलेंस कर देगा। प्रॉब्लम होगा mg sin थीटा का। तो mg sin थीटा अगर बैलेंस ना हो देन व्हाट हैपन, दिस वायर सिंपली स्लाइड्स इन डाउन डायरेक्शन। मगर हमें वायर को यहाँ ही रखना है तो कौन सी डायरेक्शन में फोर्स दे, तो mg sin थीटा ऑब्वियसली ये डायरेक्शन में दे फोर्स। ये फोर्स होगा अपना मैग्नेटिक फोर्स। तो देखो ये B है, ये रहा B, मुझे मैग्नेटिक फोर्स ये डायरेक्शन में चाहिए, ये डायरेक्शन में। तो देखो मैं सबसे पहले ये कर देता हूँ, ये फोर्स आ गया ये, और करंट ऐसा है। रेडी, मगर अपना मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो यूं कर देता हूँ। देखो 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, थंब रिप्रेजेंट फोर्स, ये डायरेक्शन में फोर्स। चेक द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट गोइंग इनसाइड, यानी ऐसा होगा। देखो ऐसा करंट गोइंग इनसाइड यानी अंदर, तो करंट जा रहा है अंदर, इस तरह करंट फ्लो होता होगा। देखो अब ये करंट कैरिंग वायर हो गया। जैसे ही करंट कैरिंग वायर है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, ऐसे फोर्स ये डायरेक्शन में लग रहा है, चेक इट। तो मैं इसके ऊपर फोर्स रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये रहा फोर्स Fm। तो कोई बोले आपने तो इधर ड्रॉ किया था, यही प्रॉब्लम है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है, दिस इज इंक्लाइन प्लेन। तो दैट मींस वी हैव टू थिंक अबाउट कंपोनेंट्स। ये एंगल कितना होगा, थीटा जो है 30। सो व्हाट इज द कंपोनेंट हियर, Fm cos 30, और इधर होगा Fm sin 30। मगर वो तो नटूलाल बैलेंस कर लेता है। तो इक्विलिब्रियम के लिए तो दो ही फोर्सेस है, देखो mg sin थीटा और Fm cos 30। तो ये दोनों फोर्सेस सेम हो जाए, that means already this wire, so to keep conductor in equilibrium, obviously mg sin 30 is balanced by Fm cos 30। बोलो
ये नीट 2018 का ऑलमोस्ट काम पूरा। अब अपने को क्या पूछा है, योर टारगेट टू फाइंड करंट, तो करंट तो इसमें आ जाएगा, देखो कैसे आएगा, एम जी साइन 30, ये साइन 30 को मैं कर देता हूँ टेन 30, कोई बोले ऐसे जादू किया जादू, वो देखो टेन 30, और इधर एफ एम की जगह आ जाएगा सिंपली बी आई एल, कोई बोले थीटा 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये देखो ये फोर्स है, करंट इस साइड जा रहा है, फोर्स इधर 90, सो cos 30 को इस साइड ले दिया, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan 30, सो अपने को अब चाहिए i, सो i इज इक्वल टू mg अपॉन bl इनटू tan 30, तो ये भी एक शॉर्टकट बन सकता है ऐसी सिचुएशन के लिए, शॉर्टकट लिख लेने का, करंट पासिंग थ्रू दिस टाइप ऑफ कंडक्टिंग वायर which is placed on inclined plane in such a way that it remains in equilibrium if magnetic field is applied in vertical direction। तो ये शॉर्टकट याद रख लेने का, मगर मैंने बोला सिचुएशन के मुताबिक अप्लाई करना, कुछ लोगों को शॉर्टकट यानी फिर हर एक सिचुएशन में अप्लाई किया, हमारे सर ने बोला है मार्क्स भी शॉर्टकट में आएंगे, सो आई m by l, देखो m by l ऑलरेडी विथ अस, मास पर यूनिट लेंथ 0.5, G 9.8, here magnetic field already given 0.25, थीटा तो tan 30 है, tan 30 की वैल्यू आपको आती होगी, it is 1/√3, मैं बोले ऐसा, yes, so if you set up the values then I can calculate and I can say what's the answer, it is, you can see that 11.32 एम्पियर, तो इतना करंट फ्लो करवाना पड़े, वो भी ये डायरेक्शन है, डोंट फॉरगेट, तो ये वायर इक्विलिब्रियम में रहेगा। मस्त क्वेश्चन फ्रेंड, यू कैन सी दैट नीट 2018 मार्वेलस। तो गेम इसके ऊपर, ये वापस देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर था, हमें फोर्स इस डायरेक्शन में देना, 2D में देखो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा फोर्स, तो करंट इनसाइड यानी करंट इस तरफ फ्लो करवाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, देखो ऐसा, ये ऐसा 3D, करंट इस साइड जा रहा है, फोर्स इस साइड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर और फोर्स इस साइड, फिर एफएम के दो कंपाउंड्स मिलेंगे, एफएम cos 30, एफएम sin 30, एफएम sin 30 और mg cos थीटा इज बैलेंस्ड बाय नॉर्मल, mg sin थीटा इज बैलेंस्ड बाय एफएम cos 30। बाकी का जर्नी आप जानते हैं, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, डोंट वरी, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग। अब मैं ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको घर पे ट्राई करनी है, सभी क्वेश्चन आईएमपी है, मगर ये क्वेश्चन है अपने आप ट्राई करने का है, ओके। सो हियर यू कैन सी दैट नीट 2018, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग इसके ऊपर और रहना चाहते हैं, सो अ वायर ऑफ लेंथ L, दिस इज योर होमवर्क, वायर ऑफ लेंथ L, you can see carries a current I, current carrying wire I, you can see, or along x axis, it is kept along x axis, पता चला, wire of length L carrying current I kept in, we can say that along x axis or in the direction of x axis, a magnetic field exists which is given as, और इसके ऊपर जो magnetic field अप्लाई किया जाता है वो है V is equal to B नॉट I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप टेस्ला, बहुत ही फेमस है, काफी जगह देखने को मिलेगा। Then find the magnitude of the magnetic force acting on the wire, find the magnetic force, magnitude, चलो magnitude of this magnetic force, this is your question, IMP question, try to solve it। next time we'll discuss few more questions। पहले तो अपन लोग अब इसके ऊपर रहेंगे, बाद में जो नई थ्योरी पे जाएंगे, क्योंकि ये सेक्शन जोरदार है, और आज जो न्यूमेरिकल्स किए सभी के सभी परफेक्ट, सो बी रेडी फॉर दिस चैप्टर। मजा ऐसा चैप्टर है, मगर कंसेप्चुअल क्लियरेंस करते जाओ। तो आज का अपना फंडा था मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर ऑफ लेंथ L placed in magnetic field B, F is equal to ILB, FBI याद रखना है। So friends, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विथ, वी कैन से दैट नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।